Hello, are you getting my voice? Okay, okay, sorry. Due to some connection, mic connection issue, I have started on my mobile. Okay, okay, sir. Guys, sorry for some delay. Okay, and today we'll continue and we'll know there will be no break in this now. Okay, so last time we have seen. Can somebody tell me what we have seen last time? Yes, what was the last point? Yes, please. We have completed friend function last time, right? Yes or no? Yes, we have yes, yes. So today we'll start the next unit, that is a inheritance and the pointers. Okay. So before starting of the inheritance, okay, I will ask some questions that we already covered. What is the inheritance? Right, guys? So can anybody tell me what is the inheritance? Yes, yes, please. And its types. Hmm. Yes, acquire. Yes, property of one class into other class, right? ये बराबर है ना? Acquire means accessing a property of one class, okay, into another class. This is called the inheritance. Okay, inherit is a word, okay, that acquire the data, and inheritance is a whole process that we are acquiring the data from one class to another class. Property we are trying to say. Okay, अरे sorry हाँ, right. Now are you getting? अरे यार, wait. This is my company laptop, so I think I can't share the screen. Okay, now I think you are getting, right? Okay. So, are you getting my notepad? Okay. So, I'm trying to say, the inheritance, inherit is a word which is providing, acquiring the properties. Okay, and inheritance is a whole process that we are acquiring the property of one class into the another class. Okay. The main thing is that while we are acquiring the property, we should have the knowledge about the access specifiers. Right, guys? Access specifiers. So, can you tell me how many access specifiers are there? Yes, private, public, and yes, protected. Yes, guys. So private का meaning क्या होता है? Nobody can access. Even you are inheriting. Public means everybody can access, and protected means only inherited class can be accessed. Okay, guys. समझ में आ रहा है ना? Okay. So the types. Last time I have told you how many types are there. First one is single. Yes. multiple, Yes. Single hybrid, inheritance. Then hybrid, multiple inheritance. Then multi hierarchical, inheritance, and you can say hybrid means anything. हाइब्रिड मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. ठीक है, ये सभी का कॉम्बिनेशन किसमें आता है? ये तीनों का कॉम्बिनेशन किसमें आएगा? हाइब्रिड में आएगा. ठीक है, तो ये मैं पहले तीन पढ़ाऊंगा एंड देन चौथा वाला मैं आपको पूछूंगा. इट्स वेरी सिंपल व्हेन यू गुड टू नो अबाउट दिस सिंगल, मल्टीपल एंड द मल्टीपल. ओके, सो मैंने पहले बोला था कि एक्वायरिंग वन प्रॉपर्टी ऑफ
class into another class. So I am just taking one example. Class A is my, okay, one class, okay, and class B is my another class, okay. So what I am trying to say, I want to access the property of all A class into class B, right? So can tell me what is the name of this class? Base class, okay. What we can say, super class, or yes we can say parent class. कुछ समझ में आ रहा है? You already discussed this. This is a base class. When you want to access this A into B, then and then only this is a base class or super class or the parent class. आपको जो कहना है वो कह सकते हो. When I am going to use as a public to B, मतलब इसका जो डेटा है वो किस में एक्सेस होगा? अभी इस फंक्शन, इस क्लास के अंदर एक्सेस होगा. तभी तभी और तभी हम क्या बोल सकते हैं? दिस A is my base class or super class or the parent class. Okay, so can you tell me for this example how many base classes are there or how many derived classes are there? Yes please. How many base classes are there? Yes please, I want an answer. Yes, simply इसके अलावा दूसरा कुछ क्लास है ही नहीं. मैंने इधर लिखा है ये एक बेस क्लास है, उसका नाम ए है. ये बेस क्लास क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? नया वाला क्लास क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं. नया वाला क्लास डिराइव का मतलब क्या होता है? इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस inheriting, okay, so this B class is the same like a normal A class. Are you getting or not? बराबर है कि नहीं? अपना B क्लास किसके जैसे हो गया? A क्लास जैसे हो गया, क्योंकि हमने उसके उसके साथ कुछ रिलेशन बनाया नहीं दूसरे किसी क्लास के साथ, किसी क्लास का. Are you getting or not? So this is what a derived class while we are writing this type of code. So how many classes are there? Base class only one class. So depends upon how many base classes are there, that is the type of inheritance. Okay guys, यहाँ जो नाम लिख रहा है सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड, इनके नाम के ऊपर ही क्या होता है? ये नंबर ऑफ बेस क्लासेस डिपेंड्स है. ओके, सो सिंगल इनहेरिटेंस में ओनली वन बेस क्लास इज प्रेजेंट. ठीक है, हाउ मेनी बेस क्लास इज प्रेजेंट? ओनली वन बेस क्लास इज प्रेजेंट. मतलब सिंगल इनहेरिटेंस का इतना ही एग्जांपल है, उसके ज्यादा उसमें क्लास नहीं हो सकते. हाँ, मे बी डिराइव्ड क्लास कितने भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेस क्लास कितने होने चाहिए सिंगल इनहेरिटेंस में? यस प्लीज, एक ही होना चाहिए. ठीक है, यह क्या होगा? मोर देन वन बेस क्लास. ओके, और वी कैन से मोर देन वन बेस क्लासेस. मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है? मोर देन वन. आर यू गेटिंग और नॉट गाइस? यस प्लीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes. ओके, मोर देन वन मतलब इधर देखो, सिंगल का मीनिंग क्या होता है? वन बेस क्लास. ओके, डिराइव्ड क्लास कितने भी हो उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन बेस क्लास हाउ वी आर इनहेरिटिंग, दैट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो एक से ज्यादा मल्टीपल मतलब अभी देखो यहां मैं एग्जांपल लेता हूं. सपोज यहां लिखा मैंने क्लास, सॉरी क्लास बी लिखता हूं मैं, क्लास को बी, नीचे वाली बी को चेंज कर देता हूं. ठीक है, दिस इज अगेन व्हाट? अनदर बेस क्लास वी कैन से. ठीक है, यह क्या होगा? मैं यहां सी लिखूंगा और यह ऐसे लिख सकता हूं, व्हाट आई टू राइट पब्लिक बी. अभी मुझे बताओ कि इस एग्जांपल में कितने बेस क्लासेस है और कितने डिराइव्ड क्लासेस है? Yes, there are two base classes and one derived classes. So even if you want to make another derived class, so you can like write, you can like class D. Okay, like this. So again, this is what? Another derived class. Now can you tell me how many derived classes and how many base classes are there? Yes, please. Yes, there are two base classes and two derived classes. पिक्चर क्लियर हो गया अभी सभी? अभी मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां कुछ प्राइवेट डेटा लिखा, सपोज प्राइवेट ए कॉमा बी, ठीक है, जो भी है,
private integer a comma b. So can you tell me, is this private variable is accessible inside C and D? Is we have inherited A over here, getting or not? So meaning is what? The property of A can be accessible inside class C and class D. बराबर है? तो मुझे बताओ, यहां मैंने अभी प्राइवेट लिखा है इंटीजर ए और बी, तो मेरा जो ए और बी है वो सी और डी में एक्सेसिबल है क्या नहीं? यस प्लीज. मैंने क्या बोला है? प्राइवेट आउटसाइड क्लास कभी एक्सेस नहीं होता है, ये ध्यान में रखो, चाहे वो इनहेरिटेड हो चाहे वो नॉन इनहेरिटेड हो. तो ये डेटा कभी भी इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा. हाँ, अगर मैंने यहां ऐसे लिखा पब्लिक, ठीक है, और ऐसे लिखा वाइड fun1, ओके, और इसमें जो भी कोई भी मेथड मैसेज डाल सकते हो. अभी ये एक्सेसिबल है क्या, बताओ मुझे, fun1 इनसाइड द सी एंड डी? यस प्लीज. Yes. यस, इट इज पब्लिक. पब्लिक एवरी विदाउट सी इनहेरिटेंस, पब्लिक होगा तभी उसको इनहेरिटेंस चाहिए. डायरेक्टली हम फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फंक्शन एक्सेस करना चाहोगे विदाउट इनहेरिटेंस, सो इट मस्ट बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द सेम क्लास. अब ये देखो, यहां हमने पब्लिक ए किया है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? आपका जो सी क्लास है ना, वो ए के जैसे बिहेव करने लगता है. आर यू गेटिंग और नॉट? आपका जो सी क्लास है ना, वो बी के जैसे बिहेव करने लगता है. मतलब योर सी क्लास इज बिहेव लाइक ए आल्सो, बी आल्सो एंड इटसेल्फ सी आल्सो. मतलब ये सी किसका किसका काम करेगा? वो खुद का तो काम करेगा ही करेगा, वो ए का भी काम करेगा और ये बी का भी काम करेगा. आर यू गेटिंग और नॉट गाइस? Yes, sir. समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड द मल्टी व्हाट? मल्टी लेवल और मल्टीपल. क्या बोलेंगे इसको? मल्टी लेवल और मल्टीपल टाइप बोलोगे? यस, क्या बोलोगे बताओ ना यार. अभी वही हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी मल्टी लेवल पढ़ रहे हैं ना? यस और नो? यस सर. तो कौन से टाइप का हो गया ये? देखो ना, यहाँ दो क्लासेस है, दो बेस क्लास है, तो ऑब्वियसली कौन सा आएगा? मल्टीपल ही आएगा ना. यस सर. एक मैं आपको यहाँ एक पिक्चर निकाल के दिखाता हूँ, फिर से आपको क्या हो जाएगा, आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये मेरा बेस क्लास 1 है, ये मेरा बेस क्लास 2 है. हम इसका नाम देते हैं क्लास ए, और इसका नाम क्या देंगे? क्लास बी. ठीक है, और एक हम क्या करते हैं, एक नीचे डिराइव्ड क्लास एक ही लिख देते हैं अभी. ये है मेरा डिराइव्ड क्लास, उसका नाम क्या है? क्लास सी. ठीक है, तो इसको डेटा हम कैसे एक्सेस करेंगे? दिस इज द so here I can access the data and here also I can access the data. समझ में आ रहा है कुछ? yes please. So this class A and B is what my base classes and C is derived class. तो C को derived class को लिखते समय आपको कैसे लिखना पड़ेगा? यहाँ कोलन डाल दो और लिखना कैसे है? पब्लिक A कॉमा, सॉरी, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास, पब्लिक B. कुछ समझ में आया कि नहीं आया? yes please. अंडरस्टूड? दिस इज द Yes, सिंपल एग्जांपल. ओके, अभी ए का और बी का डेटा हम सी में एक्सेस कर सकते हैं. वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्टेड हो सकता है या पब्लिक हो सकता है. अंडरस्टूड गाइस? सो लेट्स गो विद द एग्जांपल. सो आई विल क्रिएट वन एग्जांपल ओवर हियर. ये कौन सा है? स्टैटिक डेमो को इसको मैं हाइड कर देता हूं एंड आई हैव टू क्रिएट न्यू वन एग्जांपल. सिंगल का हमने ऑलरेडी देखा है. मैं सिंगल का देखना एग्जांपल. यस गाइस, यस प्लीज, सिंगल का देखना है क्या? सिंगल का ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी देखा है हमने. सो विल डायरेक्टली गो विद द मल्टीपल. ठीक है,
So I will just copy these two lines. ठीक है, नाउ निविल, ओके, स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का डेटा डालेंगे, ठीक है। व्हाट इज इंटीजर, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर, ठीक है, ये दो लेंगे हम। तो पब्लिक में क्या लिखेंगे, यस, ये तो ऊपर का डेटा, ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वॉइड गेट डेटा, इसमें लिखेंगे गेट स्टूडेंट डेटा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहां मैसेज डालेंगे, एंटर, यस, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर, ठीक है गाइस। यहां लिखेंगे सीन, या क्या आएगा, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर, ठीक है गाइस। ये हो गया गेट डेटा। यहां क्या आएगा, यस, वॉइड पुट स्टूडेंट डेटा, ठीक है। देन व्हाट आई विल राइट ओवर हियर, सी आउट रोल नंबर, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस देता हूं, एंड देन व्हाट, मोबाइल नंबर। आगे डेटा कॉल हो सकता है, उतनी बार पुट डेटा कॉल होगा। नेक्स्ट, क्लास। अभी हमको क्या देखना है, मल्टी लेवल देखना है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे एकेडमिक, ठीक है। एकेडमिक मीन्स आपके किस मार्क्स हो सकते हैं। सो मैं यहां लिखता हूं इंटीजर S1, S1 मतलब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, ठीक है गाइस। सो आई विल राइट ओवर हियर पब्लिक वाइड गेट सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। एंड देन यह लिखता हूं मैं वाइड पुट सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है गाइस। तो मैं यहां गेट करूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉपी एंड पेस्ट हियर, इंस्टेड ऑफ enter S1 and S2. S1 मतलब is what, subject 1, and S2 means what, subject 2, ठीक है। and S2 means what, S1 and marks S2, ठीक है। just will print and del here, so we can have the new line for the output, ठीक है guys, understood। now this is what, student class, this is my academic class, these both are the base classes. Now I want to create student data, class student data, okay. Here we can access all the data which is available inside the above classes, okay. So what I will do over here, I will create a public, yes guys, public student comma, yes, public academic, ठीक है। ऐसे लिखा मैंने, मतलब क्या होगा, ये जो गेट मार्क्स और पुट मार्क्स है, ये सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ एक्सेस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूं, पब्लिक, ओके, पहला फंक्शन लेता हूं गेट। अभी यहाँ फंक्शन का थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, यहाँ ये गेट स्टूडेंट निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ ये निकाल देते, ठीक है, गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट करेंगे, गेट स्टूडेंट डेटा, ठीक है ना। एंड यहाँ लिखेंगे void गेट की जगह हम क्या लिखेंगे, पुट, ओके गाइस। नाउ
I want to write the main function now. I will directly go for the main function and you will get the clear picture what we have to write inside this derived classes. So student data is my derived class. Okay, मैं यहाँ लिखता हूँ first derived class. ठीक है, this is a base class. Academic also is a my base class. Now can anybody tell me which class object I have to create to access all the data without creating the base class object? Yes, please. Student data. Student data, this one, right? So what is happening over there? Your student and academic is related with to whom? Student data. So the accessible of the property of student, okay, and accessible of the property of academic inside where? Inside this student data class. Okay, so क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ. ठीक है, सो आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट sd1 एंटर. सो sd1 डॉट करूंगा तो देखो कितने फंक्शन मेरे मुझे दिखाई दे रहे. कितने फंक्शन दिखाई दे रहे मुझे? टोटल 6 फंक्शन. बराबर है कि नहीं? किसके किसके? इस स्टूडेंट क्लास के 2 फंक्शन. आर यू गेटिंग और नॉट गाइज? स्टूडेंट क्लास के 2 फंक्शन, एकेडमिक के 2 फंक्शन और इस खुद के स्टूडेंट डेटा के 2 फंक्शन. आर यू गेटिंग? तो मुझे किसका फंक्शन कॉल करना है? यू कैन कॉल एनी फंक्शन नाउ. आर यू गेटिंग और नॉट? बट ये मीनिंग नहीं हुआ कि हम हर फंक्शन उस क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली कॉल गेट स्टूडेंट डेटा. ओके, सो क्या होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, बाकी फंक्शन एक्सेस करेंगे. सो यहाँ क्या करेंगे, पुट स्टूडेंट डेटा, ऐसे मैंने कॉल किया है. ठीक है, यहां लिखता हूं रिटर्न. ठीक है, ऐसे मैंने यहां लिख दिया. अभी मेरे प्रोग्राम में कहा भी एरर, किधर भी एरर नहीं है. नाउ द थिंग इज व्हाट, if I execute this program, can anybody tell me what will be the output for this program? Yes, please. Are you getting something output? आउटपुट में कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. आउटपुट में ब्लैंक मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? कौन बताएगा आउटपुट में ब्लैंक क्यों आ रहे हैं? यस प्लीज. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. Yes guys, please tell me. अरे देखो हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, स्टूडेंट गेट स्टूडेंट डेटा. इसमें कुछ है क्या कॉल एग्जीक्यूट होने के लिए? कुछ भी नहीं है. पुट स्टूडेंट डेटा में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है. तो आउटपुट कुछ नल आएगा, उसमें कुछ ब्लैंक आएगा ना. तो से आई वांट टू एक्सेस द स्टूडेंट and academic inside where? Inside the student data. So what is the public function inside the student? Yes guys, yes please. Get student and the put student. So get में क्या, get student हम क्या करेंगे, get student data में कॉल करेंगे और put student क्या करेंगे, put student में कॉल करेंगे. ठीक है, let's have a call on this one. So क्या करेंगे, get student. ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, get सब्जेक्ट मार्क्स. ठीक है, यह ऐसा आएगा. दोनों में गेट आएंगे और दोनों में क्या आएंगे अभी? यस गाइस, पुट स्टूडेंट एंड पुट सब्जेक्ट मार्क्स. अभी क्या होगा, कौन बताएगा? देखो जैसे ही कंट्रोल आपका यहां आएगा, इट विल जंप टू वेयर, इनसाइड द गेट स्टूडेंट डेटा. व्हेन दिस लाइन नंबर 48 कम्स इन अ पिक्चर, इट विल चेक दिस फंक्शन अवेलेबल इनसाइड दिस स्टूडेंट डेटा और नॉट. Yes, can you tell me this get student data is available inside the student data? Can check Yes, over sir. here. Yes, डायरेक्ट Yes. प्रेजेंट नहीं है. डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं है. डायरेक्ट है क्या प्रेजेंट? जैसे कि गेट स्टूडेंट डेटा और पुट स्टूडेंट डेटा है, डायरेक्ट नहीं है. ये कहाँ प्रेजेंट है? ये यहाँ इस स्टूडेंट के अंदर प्रेजेंट है. तो वो क्या चेक करेगा, पहले जाएगा स्टूडेंट के अंदर, चेक करेगा यस गेट डेटा इज अवेलेबल, सो इट विल एग्जीक्यूट दिस लाइन्स. अगेन कम बैक टू वेयर, वेयर फ्रॉम यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन. अगेन
इट विल चेक दिस अगेन गेट सब्जेक्ट मार्क्स। तो मुझे बताओ स्टूडेंट डेटा में गेट सब्जेक्ट मार्क्स फंक्शन अवेलेबल है क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं है। तो वो क्या करेगा, पहले स्टूडेंट में जाके चेक करेगा, क्योंकि स्टूडेंट पहले आता है सिक्वेंशियली। चेक, is there any get subject marks is present inside the student class? Not. Again it will come back to where? On this position. Again there is another class, base class, so it will again go to the this base class. Can you tell me, is the get subject marks is present inside this class? Yes guys? Yes, sir. Yes. Okay, so it will ask to enter these two marks and it will again come back to this one. तो हमने गेट डेटा भी कर लिया और पुट डेटा भी कर लिया। तो हमारा ये जो काम है गेट वाला, ये खत्म हो गया ना अभी, बराबर है कि नहीं? तो अभी हमने फिर से क्या किया, पुट कॉल किया। तो पुट भी कैसे होगा, जैसे गेट स्टूडेंट कॉल हुआ है, पुट स्टूडेंट कॉल हुआ है, वैसे ही क्या होगा आपका, ये कॉल हो जाएगा। पिक्चर क्लियर और नॉट? Yes, sir. आर यू गेटिंग? Yes, sir. तो अभी बताओ मुझे, जब मैं ये रन करूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलना चाहिए आउटपुट? व्हाट इज आउटपुट सीक्वेंस? जब गेट डेटा कॉल होगा तो वो पूछना चाहिए एंटर द रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर, बराबर है कि नहीं? जब वो गेट मार्क्स कॉल करेगा तो वो पूछना चाहिए एंटर S1 एंड S2। ठीक है, ये दोनों होने के बाद डायरेक्टली आपको क्या मिलना चाहिए, पुट स्टूडेंट एंड द पुट सब्जेक्ट मार्क्स। समझ में आ गया? सो लेट्स हैव रन ऑन दिस। देखो क्या बोल रहा है अभी वो, एंटर रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर एंड देन व्हाट इज आस्किंग, रोल S1 एंड S2। आ गया? यस प्लीज। मोबाइल नंबर एंड सॉरी, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर प्रिंट हो गए, उसके बाद S1 एंड S2 प्रिंट हो गए। अंडरस्टूड गाइज? Yes, sir. पिक्चर क्लियर हो गया सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you all have to tell me, I have to create new one base class again, ठीक है, and that base class should get accessible inside the student data. Yes, so where I can write this code, please tell me. बताओ मुझे, आप क्या करना है मुझे बताओ। If you better understand, then you can tell me. This is a one base class, this is another base class, I want to create another base class. Okay, you can give any name, and that base class data I want to access inside the this derived class. Yes, please. First, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले मुझे बताओ। अगर समझ में आ रहा है तो आंसर मिलेगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे और एक बेस क्लास बनाना है, तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा बेस क्लास? ऑब्वियसली डिराइव्ड क्लास के ऊपर लिखना पड़ेगा ना, तो यहां लिखूंगा मैं बेस क्लास। हाँ, बताओ मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा। सिंपली मैसेज प्रिंट करके दिखाओ, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। यस, यस गाइस प्लीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? पहले ये बताओ मुझे, समझ में आ गया ना मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? यस प्लीज, आर यू अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. So please tell me, I want to create the new class that is a base class, and I want to access that base class into the derived class that is a student data. So how can I access this? First, Public. what public? I want to create new class, right? So I need to create class. So what the name of the class that I have to give? आपको जो क्लास का नाम देना है वो दे दो, मुझे क्लास का नाम बताओ जो आपको देना है। यस, ठीक है, क्लास का नाम दिया मैंने सोशल, मैं यहां लिख देता हूं FB ID
ठीक है, एंड देन इंस्टा आईडी। चलेगा इसे? तो यहां लिखता हूं मैं गेट सोशल डेटा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, एंटर एफबी आईडी एंड यस इंस्टा आईडी। तो यहाँ क्या आएगा, यह आएगा एफबी आईडी और यह आएगा इंस्टा आईडी। नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी मुझे यह करना है void yes put सोशल डेटा, यस। और यह क्या करना है, मुझे यहाँ प्रिंट करना है। यह क्या आएगा, माय एफबी आईडी एंड माय इंस्टा आईडी, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस है। नाउ ये तो मेरा अभी ये कौन सा हो गया मेरा, और एक बेस क्लास बन गया ये। अभी मुझे बताओ, आई वांट टू एक्सेस दिस बेस क्लास इनसाइड द स्टूडेंट डेटा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आगे बताओ। अभी मैंने आधा बता दिया, आपने कुछ नहीं बताया। So public social. ओके, मतलब इसके आगे लिखना पड़ेगा ना यार, Yes sir. पब्लिक सोशल, ठीक है। आ गया सोशल। अभी रन कर दो प्रोग्राम, और कुछ बाकी है? यस Sir, प्लीज। get student data में get social data लिखना है। यस, गेट स्टूडेंट डेटा में गेट सोशल लिखना आना पड़ेगा। और Put यस हाँ, पुट में क्या आएगा, पुट लिखना पड़ेगा, बस सिंपल है। समझ में आ गया सबको? अभी देखो, इसको मैं रन करके दिखा रहा हूं। ठीक है, रोल नंबर आएगा 10, मोबाइल नंबर 25, ठीक है, एफ आई डी और इंस्टा आईडी आ गए सब। देखो 3 क्लास के 3 डेटा यहाँ आ गया। पिक्चर क्लियर हो गया, समझ? यस प्लीज। yes sir. Yes, sir. Yes. अभी किसी को डाउट है? यस, अभी किसी को डाउट है क्या इधर? यस और नो? No, sir. नो ना? ओके, नाउ अभी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मैं और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको। नाउ आई वांट टू क्रिएट अनदर डिराइव्ड क्लास, एंड ओवर देयर आई वांट टू यूज ओनली स्टूडेंट एंड सोशल फंक्शन, स्टूडेंट एंड सोशल क्लास। सो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा और कहां लिखना पड़ेगा? आई वांट टू क्रिएट अनदर डिराइव्ड क्लास, एंड ओवर देयर आई वांट टू यूज ओनली स्टूडेंट एंड सोशल, नॉट एकेडमिक। ऐसे हो सकता है ना, कभी कभी देखो, आपका अगर कोई डेटा देना हो किसी बाहर वाले को या किसी क्लास को और गवर्नमेंट को, बराबर है कि नहीं, तो ये डेटा शॉर्ट हो सकता है। आई वांट ओनली स्टूडेंट पर्सनल डेटा एंड सोशल डेटा। अभी बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, और उसको कॉल कैसे करना पड़ेगा। जो भी डिराइव्ड क्लास है वो ध्यान में रखो, सभी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, क्योंकि डिराइव्ड क्लास में क्या होता है, सभी बेस क्लासेस का डेटा अवेलेबल होता है, ये ध्यान में रखो। अगर आपने वैसे नहीं लिखा है तो इनहेरिटेंस का कुछ भी फायदा नहीं है। यस प्लीज टेल मी फास्ट। आई वांट टू क्रिएट अ सेकंड डिराइव्ड क्लास, मैं तो यह मैं यहां लिख देता हूं, सेकंड डिराइव्ड क्लास। ओके, हाँ, टेल मी फास्ट। Sir, we have to create another object and another class. First we have to create the class, then we can create the object, right? Yes So sir. what the name that I have to give?
यू कैन गिव एनी नेम। तो यहां क्या लिखता हूं मैं उसी क्लास का नाम लिख सकता हूं, उसका नाम दे दूंगा मैं स्टूडेंट डेटा 2। ठीक है ना, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां मैं लिख देता हूं 1, यहां लिख देता हूं 1, खत्म काम। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. तो यहां क्या लिखता हूं मैं एज इट इज लिख सकता हूं, ये कॉपी करके मैं यहां लिख देता हूं पब्लिक गेट स्टूडेंट डेटा 2। जैसे यहाँ गेट स्टूडेंट 1 लिखा है उधर, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 1 तो नहीं लिखा है, फिर भी हमने क्या लिख सकते हैं, 2 लिखूंगा मैं। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए? यस यस, पब्लिक स्टूडेंट, एंड देन बाकी दूसरा कौन चाहिए? पब्लिक Social. सोशल, नॉट एकेडमिक्स। ठीक है, ये दोनों आ गए। तो जैसे हमने गेट डेटा लिखा था वैसे हम क्या करेंगे अभी, पुट डेटा 2 भी लिखेंगे, जिससे क्या होगा हमारा, अभी मुझे स्टूडेंट का कौन सा फंक्शन है? यस, Get student. तो ये बीच वाला फंक्शन क्लोज कर दो। देखो अगर मैं बीच वाला फंक्शन रहने दिया मैं तो एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है देखो, अब फंक्शन कुड नॉट बी रिजॉल्व। इसका रिजॉल्व का मीनिंग क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पब्लिक नहीं डाला है, क्योंकि ये जो गेट स्टूडेंट मार्क्स है ये किसका फंक्शन है भाई? किसका फंक्शन है? Academics. सिर्फ एकेडमिक्स का है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एक्सेसिबल। पिक्चर क्लियर हो गया ना? अभी इसको भी यहां से कॉल कर दो और यहाँ पुट कर दो। देखो यहाँ पुट मार्क्स भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट किसका है? एकेडमिक का है। अभी मुझे बताओ अभी क्या चेंज करने पड़ेंगे ताकि मुझे गेट स्टूडेंट डेटा भी कॉल हो जाए। तो यहां मैं लिखूंगा सी आउट स्टूडेंट 1। ठीक है, ऐसे मैंने यहां लिखा और मैं नीचे लिखूंगा अभी क्या, स्टूडेंट 2। तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा नीचे अभी बताओ मुझे। यस फिर object create करना पड़ेगा. यस, आई वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? Student data 2. स्टूडेंट डेटा। तो मैं लिखूंगा sd2, देन sd2 डॉट, जैसे डॉट करूंगा उसमें कितने कौन से फंक्शन है? स्टूडेंट गेट डेटा 2। ठीक है, sd2 डॉट पुट डेटा 2। हाँ, अगर किसी टाइम आपको सिर्फ गेट स्टूडेंट ही चाहिए बाकी कुछ भी नहीं चाहिए तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम, यस sd2 डॉट गेट स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है ना कुछ? तो डायरेक्टली सिर्फ एक ही फंक्शन लग रहा है आपको, ये गेट सोशल डेटा नहीं चाहिए, पुट सोशल डेटा नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली गेट स्टूडेंट डेटा एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास। Sir, sir, दो main function लिख सकते हैं हम. नहीं लिख सकते, फंक्शन के नाम सेम होते हैं ना भाई। अब देखो यहां लिख के देखो क्या होता है, देखो इंट मेन, आपको इधर एरर देगा वो, देखो क्या बोल रही है, Yes, sir. क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड रीडेफिनेशन। रीडेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी डिफाइन है किधर, तो बराबर है कि नहीं? कंपाइलर को कंफ्यूज होगा ना कौन सा मेन फंक्शन कॉल करना है, वो छोड़ दो, ये सिंपल वाला देखो ना, मेन फंक्शन तो एरर देगा ही देगा। ये क्या बोल रहा है देखो, यहां मैं वाइड डाल देता हूं, क्या एरर दे रहा है आप ही देखो, इनवैलिड रीडेफिनेशन ऑफ गेट स्टूडेंट डेटा 2, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन है। नाम सेम हो, पैरामीटर सेम है तो वो आपको बोलेगा ही, क्योंकि कंपाइलर को प्रॉब्लम होगा कि अगर मैंने गेट स्टूडेंट डेटा 2 कॉल किया तो कौन सा वाला कॉल होना चाहिए। जैसे कि हम डिफॉल्ट और पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं? डिफॉल्ट में क्या होता है, नो पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। और उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाबा की इसमें से कौन सा पैरामीटर मैच हो रहा है। अगर फ्लोट आपने पास किया तो इंटीजर जैसा भी कंसिडर हो सकता है, इंटीजर पास किया तो फ्लोट जैसा भी कंसिडर हो सकता है। तो जैसे डेटा हम नीचे से पास करेंगे, हाँ अगर आपने ऐसे यहां लिखा इंटीजर ए, तो देखो यहां से झट से क्या हो गया, आपका एरर चला गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सेम नेम ऑफ फंक्शन विद द डिफरेंट सिग्नेचर और पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। तो ये यहां कंपाइलर को पता चलेगा, अगर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए,
अगर एक पैरामीटर कॉल किया तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए. आर यू गेटिंग गाइस? Yes? Yes, sir. Okay. So now let's have execute this code. ठीक है guys? Now let's have execute this code. अभी देखो, ये स्टूडेंट 1 का डेटा एक्सेस कर रहे हो, तो मैं यहां लिखूंगा 10 10. ठीक है, अभी क्या कर रहे हो, स्टूडेंट 1 का डेटा उसने सब प्रिंट किया. ठीक है, अभी स्टूडेंट 2 में क्या क्या होगा, सिर्फ स्टूडेंट एंड सोशल. तो रोल नंबर यहां होगा 20, मोबाइल नंबर 20, ओके, FID 20 एंड इंस्टा ID 20. हो गया क्लियर पिक्चर? यस प्लीज, समझ में आ गया ना? आर यू गेटिंग और नॉट? नोबडी इज रिप्लाइंग टू मी. Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today is enough for this one. Okay, I think you are also having lectures, right? Yes, please. सर लिंक नहीं आया अभी तक लेक्चर की. ओके ओके, तो मुझे आई थिंक लगता है 2 बच्चे ने अभी तक फी पेमेंट नहीं किया है. एक तो है सात्विक पेमेंट किया आपने? किया सर, किया. हाँ, तो कौन बचा है इसमें अभी? साक्षात का हो गया, आयुष का हो गया, प्रबल का हो गया. अपूर्व आपका पेमेंट हो गया? ये सर किया है पेमेंट. हाँ, ये सर किया है मैंने. ओके ओके. तो बचा कौन है इसमें से, और कोई तो पत्ता बचा है. ठीक है, देखता हूं मैं. सर स्वरांजलि इज देयर. हाँ, स्वरांजलि ने पेमेंट नहीं किया है शायद अभी तक, राइट? ओके गाइस, चलो बाय, कल मिलेंगे. Bye, sir. बाय बाय. Thank you, sir.